Resilience Law Academy. है ना। इन द लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो राइट्स बताता है और डॉक्यूमेंट जो होता है दैट इज अ वाइड वर्ड और इंस्ट्रूमेंट इज दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो बताता है आपके राइट एंड लाइबिलिटीज को। ऑन द अदर हैंड सेक्शन 13 में जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो डिफाइन नहीं करता एक्चुअली में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, रादर वो टाइप्स बताता है, बट इट इज नॉट गिविंग। ठीक है, लिख लो थोड़ा सा। Section 13 is only defining the types, but it is not giving the real meaning thereof. The real meaning thereof. Full stop. According to Dr. Avtar Singh, according to Dr. Avtar Singh, negotiable instrument is a piece of paper. Negotiable instrument is a piece of paper which entitles a person to a sum of money. Which entitles a person to a sum of money, and such document is generally transferable. And such document is generally transferable. Para change. It is the definition under section 14. It is the definition under section 14 which might provide a help in this regard. It is a definition under section 14 which might provide an help under in this regard, and section 14 defines the word endorsement or negotiation, and section 14 defines the word negotiation. Endorsement mat likhna, negotiation likhna, full stop. According to this definition, if an instrument is transferred, according to this definition, if an instrument is transferred, it is said to be negotiated. It is said to be negotiated. Comma. So with the help of word negotiation, we can come to a conclusion that negotiable instrument can be instrument which is transferable. Negotiable instrument can be an instrument which is transferable. Para change. Generally when an instrument is transferred, the instrument is said to be negotiated. The instrument is said to be negotiated. But the process or the procedure which is adopted to negotiate an instrument is called as endorsement. Full stop. According to section 15, either the maker or holder can endorse the instrument, and for this purpose they have to sign the instrument, maybe on the face, or at the back, or by attaching a paper, or upon a stamp paper. Full stop. We should keep in mind that the signature here should be done for the purpose of negotiation.
para change. Actually section 15 has to be read against the backdrop of definition of each instrument. Full stop. All the instrument requires a signature. Comma. So always there would be one signature on the instrument. Full stop. When these signatures are there for the first time, the person was acting as a maker. The purpose of the person was acting as a maker. The purpose means only the person was acting as a maker. Full stop. But when the same maker with the intention of transferring the instrument is signing again, then such person is signing as otherwise than as such maker. otherwise than as such maker को डबल इन्वर्टेड कॉमास में रखना. otherwise than as such maker and would be called an endorser. Full stop. For example, if A signs a promissory note in favor of B, इसको नंबर 1 दे दो. Please give it number 1. If A signs a promissory note in favor of B, A would be the maker and B would be the holder or promisee. Number 2. If A signs a promissory note in favor of B, but B transfers it to C, here B would be the endorser, and C would be the endorsee. And if C receives the money, finally C will become payee. Then third point, if A gives promissory note to B, then B can request A to transfer it to C. मैंने कल आपको एग्जांपल बताया था ना कि हो सकता है B A के पास जाए और कहे कि मैंने जो पैसे तुमसे लेने थे वो एक्चुअली मैंने C को देने थे, तो इससे अच्छा है कि तुम डायरेक्टली C को दे दो. ये वही बात यहाँ पर मैं लिखवा रहा हूँ. If A gives promissory note to B, then B can request A to transfer it to C. And if A transfer it to C, A will be the endorser, and C will be the endorsee. ठीक है. फुल स्टॉप. अब मैंने आपको एक कल क्वेश्चन दिया था. I have given you the question. XYZ company was to recover 1 lakh rupees from P. एक XYZ कंपनी है,
उसने 1 लाख रुपीज पी से लेने हैं। पी मेड अ चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज इन फेवर ऑफ अ जज ऑफ 30,000। पी क्या करता है, चेक काट के किसको दे देता है, जज को ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लुधियाना। सॉरी 30,000 ही नहीं है, एक्चुअली ये केस के फैक्ट्स है, वहां पे 30,000 ही दिल्ली में ये हुआ था, लेकिन मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए लिख दिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लुधियाना, जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लुधियाना। तो पी ने क्या किया, ये जो पे होता है, सर लेट सपोज इट इज अ चेक, पे के नाम पे क्या लिख दिया, जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लुधियाना। यहां पे अमाउंट लिखी, यहां पे साइन कर दिए और यहां पे बैंक का नेम। बट एक्चुअली XYZ कंपनी वाज टू रिकवर द अमाउंट। एक्चुअली XYZ कंपनी ने रिकवर करनी थी किससे, अमाउंट पी से। बताओ ये क्या होगा, बताओ ये क्या होगा। इसकी दो सिचुएशंस बन सकती हैं। पी वो भी इंडोर्स कर सकता है, जज वो भी इंडोर्स कर सकता है। यू कैन थिंक ऑफ XYZ कंपनी ने किससे पैसे लेने थे, बताओ, पी से लेने थे ना। XYZ कंपनी was to recover the money from the P. अब what judge of the district court लुधियाना do is, ये endorse कर देता है in favor of XYZ कंपनी। जज क्या करता है, he endorses in favor of XYZ कंपनी by signing on the back of the check. अब ये जो चेक है सिंपली, इसमें जो जज है वो कौन है, he is the holder। जज ने क्या कर दिया, आके इंडोर्स कर दिया, किसके फेवर में, XYZ कंपनी के फेवर में। तो जज हैज इंडोर्स द चेक बाय साइनिंग ऑन द बैक ऑफ द चेक या ऑन द फेस ऑफ द चेक। ठीक है, पी कौन था, पी वॉज द मेकर ऑफ द चेक। तो वो कर ही सकता है। XYZ कंपनी ने पी से पैसे लेने थे, तो लायबिलिटी पी की किसकी तरफ थी, पहले तो जज की तरफ थी। अब उसकी लायबिलिटी किसकी तरफ होगी, जब जज साहब ने ट्रांसफर कर दिया, इंडोर्स कर दिया इन द फेवर ऑफ XYZ कंपनी। नाउ द पी लायबिलिटी स्टैंड्स टुवर्ड्स इन फेवर ऑफ XYZ कंपनी। तो यहां पे जो होल्डर है, दैट इज द जज ऑफ द लुधियाना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो इंडोर्स कर रहे हैं इन फेवर ऑफ XYZ कंपनी। तो दिस कैन बी डन। ठीक है, ये मैंने आपको चीज बतानी थी। ओके, कल हमने स्टार्ट किया था जूरिस्डिक्शन का कंसेप्ट, द कंसेप्ट ऑफ जूरिस्डिक्शन। यही बताया था मैंने आपको कि मियर चेक बाउंस, पहली बात तो ऑफेंस होता नहीं है। क्या क्या ऑफेंस हो, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगे कि जो चेक बाउंस है वो ऑफेंस बनेगा। सबसे पहले तो प्रोवाइजो में हमको पता लगता है, वो क्या कहता है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चेक जो है वो डिसऑनर होना चाहिए। प्लस डिसऑनर कब होना चाहिए, जब वो चेक डिपॉजिट करवाया था आपने, डिपॉजिट विद इन कितने मंथ्स में, 6 मंथ्स और 3 मंथ्स, 6 मंथ्स और 3 मंथ्स में। प्लस नोटिस ऑफ द डिमांड, जो होल्डर है वो मेकर को कहेगा कि मेरे को डिमांड करेगा, भेजेगा ना वो कि आप मेरे को 15 डेज के अंदर जो अमाउंट है वो पे कर दो। अब अगर वो 15 डेज में पे नहीं करता, दैट इज फेलियर बाय द ड्रॉअर और द मेकर,
ये 4 इंग्रेडिएंट्स विल गिव राइज टू ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। यही था। अब दीज आर द सीरीज ऑफ एक्ट्स, ये सब सीरीज ऑफ सेवरल एक्ट्स हैं। नाउ गोइंग बाय सेक्शन 178 क्लॉज 4 ऑफ द सीआरपीसी, एक्चुअली इट्स डी ऑफ द सीआरपीसी, एक ऑफेंस को बनाने में जितने भी सेवरल एक्ट्स कमिट होते हैं, जहां जहां भी वो कमिट हुए इन द सीरीज ऑफ एक्ट्स, लेट सपोज कि चेक डिसऑनर हुआ आपका दिल्ली में, डिपॉजिट आपने करवाया था किसी मुंबई में, मुंबई के बैंक में, नोटिस ऑफ डिमांड लेट सपोज कि आपको भेजा गया चेन्नई से, तो जुरिस्डिक्शन कहां पे होगी? ऑल दोस प्लेसेस, दिल्ली की भी होगी, मुंबई की भी होगी और चेन्नई की भी होगी। दिस इज एज पर सेक्शन 178 क्लॉज 4 ऑफ द सीआरपीसी और क्लॉज डी ऑफ द सीआरपीसी। यही हमने पढ़ा था। एम आई करेक्ट और नॉट? है ना? अगर मान लो कोई एक इंग्रेडिएंट है, एक भी ना हो रहा हो, दिस इज फर्स्ट इंग्रेडिएंट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, अगर एक भी इंग्रेडिएंट नहीं हुआ कंप्लीट तो आपका ऑफेंस नहीं बनेगा। चेक बाउंस जरूर हो सकता है बट वो ऑफेंस नहीं होगा आपका, ठीक है, अगर एक भी इंग्रेडिएंट जो है आपका कंप्लीट नहीं हुआ। अब ये जो प्रैक्टिस थी ना एज पर सेक्शन 178 क्लॉज 4 ऑफ द सीआरपीसी, ये सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव की है इन द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ के भास्करन। मैं आपको डिक्टेशन के टाइम पे इसका फुल नेम बताऊंगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा एज पर दिस सेक्शन 178 क्लॉज 4 ऑफ द सीआरपीसी, दिस इज परफेक्टली फाइन। सेवरल एक्ट्स चाहे अलग अलग जगह पे भी हो रहे हैं तो हर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनेगी, बट प्रैक्टिकली ये जो जजमेंट थी और ये जो लॉ था जो जजमेंट ने दिया, ये बहुत ज्यादा आपकी हार्डशिप्स क्रिएट कर रहा था, डिफिकल्टीज क्रिएट कर रहा था। किसको? ड्रॉअर को। दैट इज जिसने पेमेंट पे करनी है, जिसकी लायबिलिटी है। अब इसी केस में सपोज मान लो कि डिपॉजिट करवाया चेक मुंबई में, नोटिस ऑफ डिमांड भेजा चेन्नई से, तो होगा क्या? आप नोटिस भेज के किसी भी प्लेस की जुरिस्डिक्शन क्रिएट कर लो। तो अगर मान लो कि डिपॉजिट आपने किया मुंबई के किसी बैंक में, दैट इज द आपके ड्रॉई ने पे ने आपके मुंबई के किसी बैंक में डिपॉजिट किया और उसके बाद नोटिस ऑफ डिमांड लेट सपोज चेन्नई से भेज दिया, तो दोनों कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन बन गई। तो ड्रॉअर लेट सपोज कि वो दिल्ली में रहता है तो उसको हार्डशिप नहीं होगी कि या तो वो पहले चेन्नई जाएगा या फिर वो पहले मुंबई जाएगा। जस्ट बाय आप एक मेयर नोटिस भेज दो, उस प्लेस का जुरिस्डिक्शन बन जाएगा। तो इट विल कॉज द ग्रेट हार्डशिप्स टू द ड्रॉअर। और इसका नेचुरली क्या होने लग गया था? अब्यूज होने लग गया था, क्योंकि जो चेन्नई का या फिर मुंबई का एडवोकेट होगा एक पर्टिकुलर कोर्ट का, वो तो यही चाहेगा कि दिल्ली के क्लाइंट भी मेरे पास आए। तो मैं क्या करता हूं कि मैं लेट सपोज कि मुंबई में चेक डिपॉजिट करवाया और चेन्नई वाला एडवोकेट ही वाज ग्रीडी, तो उसने क्या सोचा कि मैं यहां से नोटिस दे देता हूं तो चेन्नई कोर्ट की भी जुरिस्डिक्शन बन जाएगी। तो जस्ट बाय mere सप्लाई ऑफ द नोटिस was giving jurisdiction to the court of a particular place। और होने क्या लग गया था? ऐसे thousands of cases आने लग गए थे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। फिर उनको क्लब टुगेदर करके ट्रांसफर वगैरह करना पड़ता था एंड ऑल दैट थिंग्स। तो अल्टीमेटली इसमें जो हार्डशिप हो रही है, जो डिफिकल्टी हो रही है, वो किसको हो रही है? दैट इज अल्टीमेटली कॉस्ट टू द ड्रॉअर ओनली। कि हम जस्ट बाय गिविंग द नोटिस हम एक जुरिस्डिक्शन क्रिएट कर रहे हैं, किसी भी कोर्ट को हम जुरिस्डिक्शन दे रहे हैं। ये जो कंसेप्ट होता है कि हम किसी भी कोर्ट को अपनी मर्जी से जुरिस्डिक्शन दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ फोरम शॉपिंग। फोरम शॉपिंग मतलब कि हम जो फोरम है जो हमको रिड्रेस करेगा, हम उसको खुद ही शॉप कर रहे हैं, खुद ही चूज कर रहे हैं कि कौन सी कोर्ट में हमको जस्टिस लेने जाना पड़ेगा। नोटिस लेट सपोर्ट की पटना से दे दिया तो पटना कोर्ट का जुरिस्डिक्शन हो गया, लुधियाना से दे दिया तो लुधियाना कोर्ट का जुरिस्डिक्शन हो गया, चेन्नई से दे दिया तो चेन्नई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन हो गया।
आपने क्या किया, बेसिकली एक फोरम सिलेक्ट कर लिया, एक फोरम को चूज कर लिया। हम कोर्ट्स की शॉपिंग कर रहे हैं कि हम पर्टिकुलर किस कोर्ट में जाएंगे। तो ये परेशान करने का एक टैक्ट बन गया था, एक परेशान करने की जो स्किल है वो किसको बन गया था, ड्रॉवर को बन गया था। अल्टीमेटली ही हैज टू सफर द हार्डशिप्स ओनली। नोटिस आप दे रहे हो लेट्स सपोज चेन्नई से, ठीक है, और डिपॉजिट आपने करवा दिया मुंबई में, और उस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन भी बन जाएगी। इसी बात को कंसीडर करते हुए कि दैट वाज कॉजिंग द हार्डशिप्स टू द ड्रॉवर, सुप्रीम कोर्ट इन अनदर जजमेंट ऑफ हरमन इलेक्ट्रॉनिक्स वर्सेस नेशनल पैनासोनिक 2009 सुप्रीम कोर्ट, और के भास्करन थी आपकी 1919 सुप्रीम कोर्ट 1999, और 2000 में हरमन इलेक्ट्रॉनिक्स वर्सेस नेशनल पैनासोनिक ने एक और जजमेंट दे दी कि के भास्करन वाली जजमेंट को हम स्टॉप करते हैं, हम स्टे लगाते हैं उसके ऊपर। और हरमन इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जजमेंट में कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट सेड कि नोटिस वुड नॉट गिव द ज्यूरिसडिक्शन टू एनी पर्टिकुलर कोर्ट। अब आप नोटिस दे रहे हो लेट्स सपोज चेन्नई से, तो चेन्नई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगा। डिसऑनर लेट्स सपोज कि दिल्ली में हुआ, डिपॉजिट आपने करवाया मुंबई में, उन कोर्ट्स का हो सकता है, लेकिन नोटिस जहां से दे रहे हो उस कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगा। तो व्हाट वाज हैपेंड वाज कि 2019 ऑनवर्ड्स तो हरमन इलेक्ट्रॉनिक्स केस चलने लग गया कि नोटिस देने वाली कोर्ट जो है उसका ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगा। बट व्हाट विल हैपन टू दोज केसेस व्हिच वर पेंडिंग फ्रॉम 1999 टू 2009 सुप्रीम कोर्ट? दो जजमेंट्स आए, एक तो 1999 में के भास्करन वाली और 2019 में हरमन इलेक्ट्रॉनिक्स वाली। इन बिटवीन जितने भी केसेस फाइल थे, पेंडिंग थे, लेट्स सपोज कि आप मैजिस्ट्रेट हो 2010 में, देयर वाज अ मैजिस्ट्रेट, लेट्स सपोज 2010 में वो मैजिस्ट्रेट है, 2009 में हरमन इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जजमेंट ने तो ये क्लियर कट कह दिया कि नोटिस देने वाली कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगा। अब 2010 में एक पर्टिकुलर जज है, उसके सामने कोई केस लेट्स सपोज 2005 का फाइल्ड है और ये मैजिस्ट्रेट लेट्स सपोज चेन्नई का है, तो वो क्या करेगा? विल ही अडॉप्ट द 2009 वाला लॉ और विल ही गो फॉर 1999 वाला लॉ? बताइए। अगर ऐसी सिचुएशन मान लो कोई सिविल कोर्ट में आती तो क्या होता? बट यहां तो लेट्स सपोज की जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, इट इज अ क्रिमिनल केस, ऑफेंस है, पनिशमेंट है, तो क्या होगा? अगर यही सिचुएशन लेट्स सपोज सिविल केस में आती है तो आप क्या करते? आप यहां तो सिविल कोर्ट में क्या करते? ट्रांसफर की एप्लीकेशन लगा देते अंडर द प्रोविजंस ऑफ सीपीसी, या फिर ऑर्डर 7 रूल 10 में ऑफ द सीपीसी रिटर्न ऑफ प्लेंट कर देते अगर सिविल केस ये होता तो। बट माइंड यू दिस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ट्राई कर रहे हैं, तब क्या होगा? विल यू ट्रांसफर इट? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्या ट्रांसफर करेगा? लेट्स से चेन्नई का जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है तो वो दिल्ली कोर्ट या फिर मुंबई कोर्ट को ट्रांसफर करेगा कि मेरे पास तो कोई ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, और ये कह के वो जो कंप्लेंट है उसको डिसमिस कर देगा। या फिर यहां पे सीपीसी वाला ऑर्डर 7 रूल 10 अप्लाई करेगा, दैट इज रिटर्न ऑफ प्लेंट। अब इसका आंसर सुप्रीम कोर्ट ऐसे देती है कि पहली बात तो ऑर्डर 7 रूल 10 ऑफ द सीपीसी यहां पे अप्लाई नहीं करेगा सिंस इट इज अ क्रिमिनल लॉ। और कोर्ट ने यह भी कहा कि ये जो है आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इट इज अ स्पेशल लॉ ऑल्सो। इसकी नेचर जो है वो सिविल जैसी है, लेकिन इसको ओवरटून, कोर्ट हैज यूज्ड द वर्ड ओवरटून, कैसे किया गया है? एज अ क्रिमिनल लॉ। ये ओवरटून जो एक वर्ड है दैट इज गिवन बाय द जुडिशरी है, इसकी नेचर सारी सिविल लॉ जैसी ही, बट
it has been overturned to a criminal law. Why criminal law? क्योंकि जो सारा क्रिमिनल ट्रायल है वो कैसे होगा? That will be before the judicial magistrate. क्यों हमने इसको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास ट्रायबल करवाया? पहले तो आप ये रीजनिंग समझो। कहने को वो इसको सिविल मैटर में भी सिविल सीपीसी के अकॉर्डिंग भी गवर्न करवा सकते थे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को, बट व्हाई दे हैव गिवन इट अ क्रिमिनल ओवरटोन कि इसका जो सारा क्रिमिनल ट्रायल होगा दैट विल बी बिफोर द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। व्हाई? बिकॉज द सैंक्टिटी ऑफ द चेक है, ये सारी बातें एक जजमेंट में की गई हैं, वो आपको मैं डिक्टेशन में बताऊंगा। सैंक्टिटी ऑफ द चेक वॉज लूजिंग इट्स वैल्यू। जो पीपल पेमेंट बाय वे ऑफ चेक करते होते थे वो अब चेक को सीरियसली ही नहीं ले रहे थे। दे आर नॉट रियलाइजिंग कि चेक की क्या इंपॉर्टेंस है, कि अगर उन्होंने चेक काट के दे दिया गया तो व्हाट विल बी देयर ड्यूटी, हमको उस पर बाइंड करना है। तो जो पेमेंट विच वॉज मेड बाय द चेक एज अ मोड ऑफ पेमेंट दैट वॉज लूजिंग इट्स वैल्यू। So to maintain the dignity of that particular instrument, to maintain the dignity of that particular check, Negotiable Instrument Act ने criminal trial जो है इसको overturn दे दिया और इसको offense create कर दिया under section 138 of this act। और criminal trial obviously एक judicial magistrate जो है वो try करेगा, और judicial magistrate की power हमेशा हमेशा CRPC से derive होती है और right now BNSS से derive होती है। तो ऑर्डर 7 रूल 10 ऑफ द सीपीसी दैट टॉक्स अबाउट द रिटर्न ऑफ प्लेंट, ये अप्लाई होगा ही नहीं, इट विल नॉट बी एप्लीकेबल, बिकॉज प्लेंट जो है वो कभी भी आप मैजिस्ट्रेट को नहीं देते हो हु इज ट्राइंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, क्योंकि वो ट्राई का कैसे कर रहा है एज पर द प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी। मैजिस्ट्रेट अपनी पावर जो है वो सीआरपीसी से डिराइव करता है। हाँ, अगर ऑर्डर 7 रूल 10 जैसा कोई प्रोविजन सीआरपीसी में एप्लीकेबल है तो वो यहां पे अप्लाई कर जाएगा रिटर्न ऑफ द कंप्लेंट जैसा, बट वो है ही नहीं। और फिर भी हमारा क्वेश्चन है वो भी ऑल टुगेदर डिफरेंट है कि ज्यूरिसडिक्शन जो है वो किसके पास लाई करेगी। क्वेश्चन हमारा डिफरेंट है ना, क्योंकि हरमन इलेक्ट्रॉनिक्स ने तो कह दिया कि नोटिस जहां से जिस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन से मिल रहा है उस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन होगी ही नहीं। ये हमारा क्वेश्चन है, ये थोड़ी क्वेश्चन है कि वो ट्रांसफर करेगी एज पर द प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी या रिटर्न करेगी कंप्लेंट को एज पर द प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, अब वही फिर से हम स्टैंड करते हैं कि लेट्स सपोज कि आप 2010 में एक मैजिस्ट्रेट हो, आपके पास 2005 का कोई केस है वो पेंडिंग है। 2005 वाला जो केस फाइल हुआ उसमें फॉलोइंग द के भास्करन जजमेंट, के भास्करन जजमेंट को फॉलो करते हुए हमने उस कोर्ट को भी ज्यूरिसडिक्शन दे दी जहां से नोटिस जो है वो भेजा गया था, नोटिस वाज सेंट, इस कोर्ट को भी हमने ज्यूरिसडिक्शन दे दी। ऑलराइट, बट व्हेन इन द ईयर 2019 you have got the Harman Electronics versus National Panasonic वाला केस लॉ चेंज, लॉ गेट्स चेंज्ड। तो अब तो यहां पे आपको बात क्लियर आ गई ना कि ऑर्डर 7 रूल 10 ऑफ द सीपीसी तो अप्लाई होगा ही नहीं, ना ही ट्रांसफर कर सकते हैं हम। और 2009 में क्या कह दिया कोर्ट ने कि नोटिस जहां से भेजा गया जिस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन से, वहां पर तो ज्यूरिसडिक्शन क्रिएट होगी ही नहीं। तो क्या यहां पे मैजिस्ट्रेट ये ऑर्डर दे सकता है कि यस आई हैव ज्यूरिसडिक्शन, क्योंकि नोटिस यहां से भेजा गया था फॉलोइंग द के भास्करन जजमेंट? नेचुरली वो यही कहेगा, क्योंकि जो जजमेंट होती है नॉर्मली उनका प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन रहता है, दे कैरी देयर इफेक्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टाइम, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डेट जहां से वो जजमेंट दी गई थी, दैट इज 2019 ऑनवर्ड्स। अगर कोई भी केस फाइल होता 2010 में, 11 में, 12 में, तब हम हर्मन इलेक्ट्रॉनिक्स जजमेंट को फॉलो करते। लेकिन पिछला जो लॉ है, पिछली जो केस फाइलिंग है 2005 की, तो ऑफ कोर्स हम के भास्करन वाली जजमेंट ही फॉलो करेंगे। अब आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास ज्यूरिसडिक्शन बनती नहीं है,
दैट इज कि जो मैजिस्ट्रेट है जहां से नोटिस भेजा गया था वो वाला मैजिस्ट्रेट ये कह ही नहीं सकता कि मेरे पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है बिकॉज द लॉ हैज बीन चेंज्ड राइट नाउ। आपको के भास्करन वाली जजमेंट जो है वो अफर्म कर रही है आपकी ज्यूरिसडिक्शन को। और अगर आप अपने ही ऑर्डर को, जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर वो कहता है कि यस आई हैव द ज्यूरिसडिक्शन टू डिसाइड द केस, अगर आप उसको फिर से ट्रांसफर करने की बात करते हो या फिर कहते हो कि आई डू नॉट हैव द ज्यूरिसडिक्शन, तो आप क्या कर रहे हो, यू आर रिव्यूइंग योर डिसीजन। आप अपने डिसीजन को रिव्यू कर रहे हो, आप अपने ऑर्डर को रिव्यू कर रहे हो। एंड माइंड यू, एज पर सेक्शन 362 ऑफ द सीआरपीसी, रिव्यू हो ही नहीं सकता इन द क्रिमिनल केस। रिव्यू इज नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता ना ये केस रिव्यू। तो दैट मीन्स व्हाट, 2005 की अगर फाइलिंग है तो मैजिस्ट्रेट को फॉलो करनी पड़ेगी के भास्करन वाली ही जजमेंट। अगर वो ये कहता है कि अर्लियर तो उसने कह दिया 2005 में उसने केस भी ले लिया, कंप्लेंट भी ले ली क्योंकि उसके पास ज्यूरिसडिक्शन बनती थी, अब वो ये कह रहा है कि हरमन इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जजमेंट आ गई है 2009 में तो मेरे पास ज्यूरिसडिक्शन बनती नहीं है, तो दैट विल अमाउंट टू रिव्यूइंग हिज अर्लियर डिसीजन व्हिच इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड अकॉर्डिंग टू द, और व्हिच इज नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 362 ऑफ द सीआरपीसी। ये लॉ जो है दैट वाज अगेन गिवन इन द फेमस जजमेंट ऑफ अदालत प्रसाद वर्सेस रूपलाल जिंदल। अदालत प्रसाद वर्सेस रूपलाल जिंदल 2004 सुप्रीम कोर्ट। ये इन बिटवीन एक केस आया था, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस अदालत प्रसाद वाला केस, whatever the cases were pending from the year 1999 to 2009, they were still there in the respective courts, or even those courts जहां से नोटिस भेजा गया था, nothing can be done to them। और इसी वजह से खास करके दिल्ली में बहुत ज्यादा केसेस जो है वो फाइल होने स्टार्ट हो गए थे। लोगों ने, वहां के जो एडवोकेट्स उन्होंने क्या किया था, नोटिस जो है वो दिल्ली से देना स्टार्ट कर दिया था, तो ऑटोमेटिकली दिल्ली कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन बन गई थी। दिल्ली में बहुत सारे केसेस जो है इसके राइज कर गए थे एज कंपैरिजन टू होल ऑफ द इंडिया, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो दिल्ली में क्योंकि बहुत सारे केस राइज कर गए थे, इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने अंडर सेक्शन 482 ऑफ द सीआरपीसी एक सुओ मोटो डायरेक्शन दी टू ऑल द लोअर कोर्ट्स कि आप सारे केसेस जो 1999 से 2009 के जिनकी फाइलिंग है आप उनको रिटर्न कर दो एज पर फॉलोइंग द हरमन इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जजमेंट। तो दैट मीन्स अगर मान लो नोटिस दिल्ली से भेजा गया था, दिल्ली से क्या भेजा गया था, नोटिस वाज सेंट। दिल्ली हाई कोर्ट ने 482 सीआरपीसी में एक गाइडलाइन दे दी, एक डायरेक्शन दे दी कि दिल्ली के सारे जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, वो हरमन इलेक्ट्रॉनिक्स को फॉलो करेंगे। और कंसर्न जो कोर्ट बनती है कि लेट सपोज कि चेक डिसऑनर हुआ आपका मुंबई में, और जो डिपॉजिट किया गया था लेट सपोज वो किया गया था आपका चंडीगढ़ में, आप इन कोर्ट्स को ये केस ट्रांसफर कर दो, ठीक है। राइट नाउ ये जो दिल्ली हाई कोर्ट की सुओ मोटो जो डायरेक्शन थी ये अभी पेंडिंग ही थी, इसका भी चैलेंज हो गया था। दिस वॉज पेंडिंग बिकॉज इट वॉज चैलेंज्ड। ये भी चैलेंज हो गई थी और इसका चैलेंज का भी डिसीजन होना आता था, जो ये चेक करना था जिसने कि क्या ये जो डायरेक्शन है दिल्ली हाई कोर्ट ने वो दी है वो सही है कि नहीं है। अभी ये पेंडिंग ही था केस कि एक और फेमस जजमेंट आ गई, दैट इज दशरथ रूप सिंह राठौर। ठीक है, दशरथ रूप सिंह राठौर वाली एक जजमेंट आ गई, दैट वाज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग जजमेंट। अब इसके फैक्ट्स में जाने से पहले दशरथ रूप सिंह राठौर के, अभी मैं आपको सारी ये स्टोरी बता रहा हूं कि कैसे कैसे जो एडवेंट है ज्यूरिसडिक्शन का कैसे बना हो। दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर पर्पस ऑफ एग्जाम। इससे पहले कि दशरथ रूप सिंह राठौर के केसेस में फैक्ट्स में हम जाएं,
एक बात याद रखना कि जो के भास्करन वाली जजमेंट है और जो हर्मन इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जजमेंट है वो 2-2 बेंच डिसीजन है। तो हम किसको फॉलो करेंगे, क्योंकि सेम जजेस ने जो डिसीजन दिया है हम उनको कैसे ओवररूल कर सकते हैं जस्ट बिकॉज कि वो बाद में आया है हर्मन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का। तो डज दैट मीन कि जो के भास्करन वाली जजमेंट है विच वाज गिवन बाय द इक्वली सेम नंबर ऑफ बेंच हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। ये भी जो चैलेंज हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट की जहां पे जजमेंट जो डायरेक्शन है वो चैलेंज हुई थी, उसी में ये पॉइंट भी रेज किया गया था। लेकिन अभी इसका डिसीजन आता उससे पहले ही दशरथ रूप सिंह राठौर जो है वो डिसाइड हो गया। दैट वाज अगेन अ वेरी वेरी लैंडमार्क जजमेंट। अब इसके फैक्ट्स आप ध्यान से सुनना और लिखते भी जाओ। एक पर्सन है ए, लेट सपोज वो दिल्ली से जाता है चंडीगढ़ में, ही गोज फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से वो कुछ परचेज करता है, ही बाय समथिंग और ये परचेज समथिंग और इस परचेज के इन रिटर्न वो एक चेक इशू कर देता है, ही गिव्स अ चेक। ठीक है, चेक वो कहां डिपॉजिट कराता है, चेक वॉज लेट सपोज डिपॉजिटेड इन चंडीगढ़। चेक जो है वो डिपॉजिट करवाता है चंडीगढ़ में। चेक जो है लेट सपोज डिसऑनर भी चंडीगढ़ में हो गया, लेट सपोज इट ऑल्सो गॉट डिसऑनर्ड इन चंडीगढ़। सपोज कि नोटिस भी चंडीगढ़ से भेजा गया, नोटिस वॉज ऑल्सो सेंट फ्रॉम चंडीगढ़। सो द एंटायर ट्रांजेक्शन, ये खुद रहने वाला दिल्ली का है सारी, लेकिन जो ट्रांजेक्शन है वो चंडीगढ़ की होगी, चंडीगढ़ में ही है सारा। इसने चेक भी इशू किया, डिपॉजिट भी वहां करवाया, मान लो इसका कोई और बैंक अकाउंट होगा चंडीगढ़ में, ठीक है, नोटिस भी वहीं से भेजा अपना एडवोकेट करके। द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट वाज, सुप्रीम कोर्ट वाज कि विच कोर्ट विल हैव जुरिस्डिक्शन। और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यह ले डाउन किया ओनली द दिल्ली कोर्ट विल हैव जुरिस्डिक्शन। डिस्पाइट कि देखो सारी ट्रांजैक्शन जो है वो चंडीगढ़ में हुई है, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट ने कहा कि ये जो जुरिस्डिक्शन बनती है वो दिल्ली कोर्ट की बनती है। रीजनिंग क्या दी कोर्ट ने वो ध्यान से सुनना, दैट आई एम रीडिंग अ पैराग्राफ। रीजनिंग वाज बिकॉज एसेंशियली सेक्शन 138 इज ऑफ सिविल नेचर and when we are having a civil nature we should come to the concept of cause of action. We are taking into consideration this concept of cause of action, and cause of action is a concept which is not only confined to CPC but it can also be brought into the CRPC. फॉलो कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट ने ये रीजनिंग दी कि हम कॉज ऑफ एक्शन के बेसिस के ऊपर दिल्ली कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो है वो फाइनलाइज करते हैं। और कोर्ट ने कहा कि इवन दो कि वो जो कंसेप्ट है कॉज ऑफ एक्शन का वो सीपीसी में एप्लीकेबल है, लेकिन इट कैन बी ब्रॉट इनटू द एम्बिट ऑफ इन द पैराडिगम ऑफ सीआरपीसी आल्सो। तो अगर मान लो कोई दिल्ली का पर्सन है वो चंडीगढ़ में जा रहा है, कोर्ट ये कह रही है कि ऑब्वियसली उसका दिल्ली में भी कोई अकाउंट होगा, he will also be maintaining an account in Delhi, and when he will give the check in Chandigarh, check was deposited in Chandigarh, तो क्या होगा? हाँ जी, तो कोर्ट ने कहा कि अगर मान लो दिल्ली का पर्सन है, उसका दिल्ली में भी एक अकाउंट मेंटेन होगा, इवन तो अगर उसने चेक चंडीगढ़ से दिया है, नोटिस भी चंडीगढ़ से आया है, तो होगा क्या एक्चुअली? चंडीगढ़ वाली जो ब्रांच है वो दिल्ली ब्रांच को कांटेक्ट करेगी, कॉल करेगी कि आप इतनी इतनी अमाउंट हमको ट्रांसफर कर दो। क्लियरिंग हाउस का कंसेप्ट रिकॉल करो। क्लियरिंग हाउस में मैंने आपको यही बताया था ना कि वन पर्सन इज हैविंग एन अकाउंट इन एसबीआई, he issues a check to another person who is having an account in HDFC, तो अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होगी, पैसा एसबीआई से एचडीएफसी में जाना है, तो क्लियरिंग हाउस क्या कहेगा? एचडीएफसी बैंक जो है वो कॉल करेगा दिल्ली को, सॉरी एसबीआई को, कि आप हमको इतनी इतनी अमाउंट जो है वो ट्रांसफर कर दो। यही होता अगर मान लो लेट सपोज कि अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर नहीं है, कि
दिल्ली ब्रांच से जो अमाउंट है वो जानी है चंडीगढ़ ब्रांच में। अगर ये अकाउंट टू अकाउंट लेट सपोज की ट्रांसफर भी नहीं है, अदरवाइज एन अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर है, फॉर एग्जांपल आपका कैश निकलना है, हार्ड कैश निकलना है, तो फिर भी तो आपके दिल्ली का जो बैंक अकाउंट है वहीं से तो डेबिट होता आपका कैश, वहीं से तो इन कैश कराना था, तो दैट वुड वर्चुअली हैव बीन गॉन टू द चंडीगढ़। तो जो पैसा है वो दिल्ली से कहां जाना है, चंडीगढ़ में जाना है। बट लेट सपोज कि जो चेक है वो बाउंस कर गया। अब बाउंस में क्या होगा, चंडीगढ़ बैंक जो है वो दिल्ली को कहेगा कि दिल्ली वाले बैंक अकाउंट को, दैट इज बैंक को डायरेक्शन देगा कि इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से जो अकाउंट है उसमें इतनी मनी नहीं थी और जो आपका चेक है वो डिसऑनर हो गया। यही तो कहेगा दैट वी हैव नो मनी इन द दिल्ली बैंक। एंड इफ दिल्ली बैंक ऐसा कह रहा है कि वी हैव नो मनी, ये सारा मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं, जो रीजनिंग है सुप्रीम कोर्ट की वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देन वेयर इज द फेलियर, फेलियर कहां पे हो रहा है, फेलियर टू पे द मनी। नेगेटिव आंसर कहां से आ रहा है, दिल्ली बैंक से ही तो आ रहा है, क्योंकि उसी ने तो कहा कि हमारे पास इनसफिशिएंट फंड है, बैंक मेमो इशू किया, उसमें सारे ग्राउंड्स बताए, वहीं से तो नो आई कि दैट देयर आर नो फंड्स इन द दिल्ली अकाउंट which the Chandigarh account which the Chandigarh bank account was asking. So since there is a failure from the Delhi branch of the bank, the cause of action will lie in the Delhi, because a no or the failure comes from the Delhi, negative answer is coming from the Delhi, और ये सुप्रीम कोर्ट ने आंसर दिया by applying the cause of action principle। अब मेरे को बताओ कि सुप्रीम कोर्ट की क्या ये जो जजमेंट है जहां पे वो कॉज ऑफ एक्शन के बेसिस के ऊपर ये केस डिसाइड कर रहे हैं, इज इट करेक्ट और नॉट। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इट हैज बीन वाइडली क्रिटिसाइज्ड, और क्रिटिसिज्म्स इसके ये हुए हैं कि द सुप्रीम कोर्ट इज अडॉप्टिंग अ हाइपर टेक्निकल अप्रोच विद द जस्टिस। तो होगा क्या एक्चुअली कि फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज जो क्रिटिसिज्म्स हैं वो भी इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दशरथ रूप सिंह राठौर वाली जजमेंट के। दिस जजमेंट हैज बीन आस्क्ड नंबर ऑफ टाइम्स इन द एग्जाम्स। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं ताकि आप लिखते रहो साइड बाय साइड। तो क्रिटिसिज्म्स ने, क्रिटिसाइज करने वालों ने ये कहा कि प्रैक्टिकली द सुप्रीम कोर्ट इज अडॉप्टिंग अ वेरी वेरी हाइपर टेक्निकल अप्रोच विच इज नॉट इन लाइन विद द जस्टिस। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कि चेक का अमाउंट है 10,000 रुपए की, तो डू यू थिंक कि जो विक्टिम है, जो कंप्लेनेंट है, दैट इज अ ड्रॉअर है, वो चंडीगढ़ से दिल्ली जाएगा ईच टाइम पे। अब इस केस, अगर इस केस को फॉलो करें दशरथ रूप सिंह राठौर वाले जजमेंट को, तो होना तो ऐसे ही चाहिए, क्योंकि दिल्ली कोर्ट की जुरिसडिक्शन बनती है बाय अप्लाइंग द कॉज ऑफ एक्शन प्रिंसिपल। तो इट विल नॉट बी फिजिबल फॉर द ड्रॉअर कि एवरी टाइम ही विल बी गोइंग टू द दिल्ली। एंड इफ ही कम्स टू द दिल्ली, तो एक्चुअली जो ड्रॉअर है ही इज चेजिंग, वो किसको चेस कर रहा है, पेई को, दैट इज अक्यूज्ड को। उसी को चेस कर रहा है। एक तो जो ड्रॉअर है इतनी दूर उसकी जुरिसडिक्शन बना दी दिल्ली में, फिर जो अक्यूज्ड पर्सन है उसको भी वो ये चेस करे। सॉरी, ड्रॉअर नहीं, यहां पे पे होगा, पे दैट इज अ कंप्लेनेंट। यहां पे होगा ड्रॉअर, यस। जो कंप्लेनेंट है वो चेस कर रहा है किसको, ड्रॉअर को, दैट इज मेकर को। तो एक तो इसने पैसे रिकवर करने कंप्लेनेंट ने मेकर से, और दूसरा आप इसकी जुरिसडिक्शन भी कहां दे रहे हो, दिल्ली कोर्ट में, बाय अप्लाइंग द कॉज ऑफ एक्शन प्रिंसिपल। सो इट इज एक्सट्रीमली हाइपर टेक्निकल। तो इस बात पे इसको क्रिटिसाइज भी किया गया। मतलब कंप्लेनेंट कहता है कि मेरा पैसा है और मैं ही पीछे भागू, तो व्हाट विल हैपन इफ द अक्यूज जो है वो बहुत फार ऑफ प्लेस से है, फॉर एग्जाम्पल बिहार से हो गया, असम से हो गया, वो मान लो कि लुधियाना आ गया, तो कंप्लेनेंट है जिसने पर्सन ने पैसे लेने लुधियाना के बंदे ने, वो क्या हर टाइम पे असम या फिर बिहार जाएगा,
तो दिस इज नॉट इन लाइन, दैट इज वेरी वेरी टफ फॉर हिम, दैट इज अ कंप्लेनेंट। कहां पकड़ोगे आप उसको? ऐसे चेक की भी सैंक्टिटी खत्म होती है कि जुरिस्डिक्शन तो आपने अल्टीमेटली फार ऑफ प्लेस वाले अक्यूज्ड जो है उसकी जुरिस्डिक्शन को दे देनी। दैट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस एज वेल। और इक्विटी के प्रिंसिपल्स ये क्लियर कट बात कहते हैं कि कंप्लेनेंट जो है ही शुड नॉट चेज द अक्यूज्ड, रादर अक्यूज्ड शुड बी फोर्स्ड कि वो कंप्लेनेंट को पैसे दे। अक्यूज्ड है उसकी लायबिलिटी बनती है ना, ड्रॉअर की लायबिलिटी बनती है कि वो कंप्लेनेंट को पे करे। अब यहां पे हो क्या रहा है, वर्चुअली जो कंप्लेनेंट है वो फॉलो कर रहा है ड्रॉअर को, दैट इज अक्यूज्ड पर्सन को। तो बिफोर दशरथ रूप सिंह राठौर केस, ये केस आने से पहले जो अक्यूज्ड था वो सफर करता था। आफ्टर द कमिंग ऑफ दशरथ रूप सिंह राठौर केस इट इज अदर वे अराउंड, दैट इज जो आपका कंप्लेनेंट है वो सफर कर रहा है। दशरथ रूप सिंह राठौर के बाद एक ऑर्डिनेंस आता है, देयर वॉज एन ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस आपको पता है कि इट इज प्रोमलगेटेड, promulgated by the president। और ये ऑर्डिनेंस ने ही सारा जो लॉ है वो चेंज कर दी। और ये जो ऑर्डिनेंस है इसी को बाद में अमेंडमेंट की फॉर्म में अपनाया गया, एंड विच इज द करंट लॉ टुडे, कि आज की डेट में जुरिस्डिक्शन किसकी होती है। ठीक है, दिस ऑर्डिनेंस लेटर ऑन बिकम एन एक्ट, दैट इज अमेंडमेंट एक्ट। हमने फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को 2015 में अमेंड कर दिया, एंड दैट इज द लॉ टुडे आल्सो। ये एक्ट बना कॉन्सिक्वेंट टू दिस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस ओनली। यहां तक आपको बात समझ है? ये जो सारा सिनेरियो है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे आपका वो के भास्करन, फिर हरमन इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर अदालत प्रसाद, फिर आपका ये दशरथ रूप सिंह राठौर, ये पूरी प्रॉपर जर्नी है। अगर आपको क्वेश्चन आता है हाउ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट इन चेक बाउंस केसेस आर डिटरमिन्ड, तो आप ये सारी जर्नी एक्सप्लेन करोगे। दैट हैज बीन आस्क्ड नंबर ऑफ टाइम्स इन द पीसीएस पेपर्स। ठीक है, तो ये एक्ट है, दैट इज अमेंडमेंट एक्ट है, ये बना इन परसुएंट टू दिस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस। और ऑर्डिनेंस जो था अर्लियर वो प्रोमलगेट किया था प्रेसिडेंट साहब ने। और आई होप ये सारी चीजें आप लिखते भी रहोगे। जुरिस्डिक्शन जानने से पहले मैं आपको एक और चीज बताऊं, हमको जानना पड़ेगा सबसे पहले कि देयर आर टाइप्स, टू टाइप्स ऑफ चेक। दो तरह के चेक होते हैं। नंबर वन, इट इज अकाउंट पे चेक। नंबर टू, इट इज अदरवाइज थ्रू अकाउंट। इसको आप कहते हो सेल्फ चेक। और जो जुरिस्डिक्शन है आज की डेट में वो इन्हीं टू चेक के नेचर के, इन टू चेक के टाइप्स के अकॉर्डिंग है वो डिसाइड होती है जुरिस्डिक्शन कि कौन सी पर्टिकुलर कोर्ट को वो मिले। पहले तो आप समझो कि अकाउंट पे चेक कौन सा होता है, फिर आपको पर्टिकुलरली सिनेरियो क्लियर होगा कि जुरिस्डिक्शन एक्चुअली किसकी बनती है। फॉलोड? अकाउंट पे चेक, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ चेक, यहां पे पेई का नाम होता है, देयर इज डेट, और यहां पे ड्रॉअर के सिग्नेचर होते हैं, देयर आर सिग्नेचर ऑफ ड्रॉअर, और यहां पे बैंक का नेम होता है। अब ये चेक मान लो किसी पर्सन बी को दे दिया, ए ने काट के ये चेक बी को दे दिया, तो बी क्या बन गया? ही बिकम्स द बियरर और ही बिकम्स द होल्डर। अगर वो इन कैश करवा लेता है तो ही बिकम्स द पे। बट अगर इसी चेक के साइड में, दैट इज यहां पे, अगर मैं डबल लाइंस लगा के यहां लिख दूं अकाउंट पे, या सेंटर में लिख दूं डबल लाइन लगा के अकाउंट पे, या चेक के ऊपर लिख दूं अकाउंट पे, बेसिकली मैं बता रहा हूं कि ये चेक कौन सी नेचर का चेक है, दैट इज अकाउंट पे चेक। वो कैसे बताया? डबल लाइंस मार्क करके, आइदर इन द मिडल और इन द साइड और ऑन द टॉप ऑफ द चेक। इट कैन बी हियर ऑल्सो, इट कैन बी इन द मिडल ऑल्सो, और इट कैन बी इन द साइड ऑल्सो। तीनों में आइदर ऑफ द वेज इट कैन बी देयर।
तो ये चेक जो अर्लियर नॉर्मल था ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम अकाउंट पे चेक। फॉलोड? डबल लाइन से आप लगाते हो किसी भी सिंपल चेक के ऊपर तो दैट बिकम्स अकाउंट पे। अब अकाउंट पे चेक का ये है जो ये मैंने आपको बताया, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ अकाउंट पे चेक। फॉर्मेट ऑफ अकाउंट पे चेक। इफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अकाउंट पे चेक? ये तो मैंने आपको बता दिया, ये तो फॉर्मेट होगा। Actually today nobody is present in the class, that is why it becomes very monotonous for me also to teach. अफेक्ट देखो क्या होता है, अफेक्ट ऑफ अकाउंट पे चेक। फॉर एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा, ए ने अकाउंट पे चेक इशू किया इन द नेम ऑफ रेजिलियंस लॉ अकेडमी। अब ये जो अकेडमी है रेजिलियंस लॉ अकेडमी, ये अपने बैंक में इसको डिपॉजिट कराएगा, इट विल डिपॉजिट द सेम इन इट्स बैंक। और लेट्स सपोज कि ये बैंक है दैट इज HDFC, ए का था SBI में अकाउंट, एग्जांपल वही लिखते हैं। नाउ इफेक्ट क्या होगा, SBI अकाउंट ऑफ द ए, यहां से जो मनी है वो डेबिट हो जाएगी और यहां पे HDFC दैट इज रेजिलियंस लॉ अकेडमी का RLA का जो अकाउंट है यहां पे क्रेडिट हो जाएगी, हियर इट विल गेट क्रेडिटेड। तो अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर हो रहा है, फ्रॉम A's SBI account it will be debited and from RLA's HDFC bank account it will be credited. So transaction will be from the account to account, account to account transaction हो रही है, no physical movement of the money is there, only electronic transfer, that is account पे check। इफेक्ट क्या होता है, एक अकाउंट से डेबिट होकर दूसरे अकाउंट में चला जाता है। नंबर 2 फॉर्म ऑफ चेक दैट इज अदरवाइज थ्रू एन अकाउंट, दैट इज सेल्फ चेक्स। ये क्या होता है? अच्छा चलो ये बताओ मेरे को, आज की डेट में सबसे इजीली और सबसे फास्ट आपको कैश विड्रॉ करवाना हो तो व्हाट इज द मोड और व्हाट इज द मीडियम जिससे आप जो है बड़ी इजीली और वेरी क्विकली सेफली अपना कैश जो है वो विड्रॉ कर सकते हो? यू में आंसर किट इज ATM, बट मान लो आपके पास ATM नहीं है तो कैसे निकालोगे? हाउ विल यू विड्रॉ द मनी? आप निकालोगे बाय वे ऑफ सेल्फ चेक। इस पे क्या होगा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि डबल लाइंस नहीं होती, डबल लाइंस लाइक इन अकाउंट पे चेक आर नॉट देयर। तो ये जो चेक है इसका फॉर्मेट क्या होगा, यहां पे पे के नाम पे सेल्फ लिखा जाएगा, अपने आप को, बैंक का नेम, सिग्नेचर, मैं खुद ही अपने आप को सेल्फ चेक इशू कर रहा हूं, अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक। और यहां पे साइन किसके होंगे, मेरे ही होंगे क्योंकि मैं खुद को ही तो चेक इशू कर रहा हूं। और यहां पे आ जाएगी आपकी डेट और ये चेक मैं जाके अपने बैंक में दूंगा और बैंक मेरे को क्या करेगा, कैश दे देगा, बैंक विल गिव मी हार्ड कैश। दिस इज सेल्फ चेक, जहां पे जो पर्सन है अदरवाइज देन थ्रू अकाउंट अपने ही बैंक में देता है और उसको हार्ड कैश मिल जाता है। मनी फ्रॉम वन अकाउंट डेबिट होके आपको वही मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश मिल जाएगी। अकाउंट टू अकाउंट इसमें ट्रांजैक्शन नहीं होती, रादर अकाउंट से निकाल कर आपको कैश में पैसा दे दिया जाता है। इसका एक और वे होता है, ये खाली यही नहीं होता, इट कैन बी अदरवाइज ऑल्सो, इट कैन बी अदरवाइज ऑल्सो। अब ये अदरवाइज में एक सिचुएशन आती है, फॉर एग्जाम्पल ये समझना प्लीज आप, फॉर एग्जाम्पल
example, let's suppose I am teacher in resilience. I get a salary. Let's suppose कि मेरे को सैलरी 6th और 7th ऑफ ईच मंथ मिल जाती. Each month I get my salary. Let's suppose that these are the hypothetical facts. मेरे अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाती है. बट 6 या 7 तारीख आने से पहले मेरे को मनी की बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी. मैंने अपनी अकेडमी के ओनर से कहा, लेट सपोज वो ओनर है राहुल सर. मैंने उनसे कहा कि यू प्लीज गिव मी द मनी, आई एम इन अर्जेंसी, आई कैन नॉट वेट कि 6 to 7 ऑफ एवरी मंथ. मैं नहीं वेट कर सकता, मेरे को पहले आप मनी दे दो, आई एम इन अर्जेंट नीड. अब यहां पे होगा क्या? आई विल गो टू हिम, दैट इज राहुल सर. राहुल सर मेरे को एक चेक काट के दे देंगे, दैट इज अदरवाइज थ्रू अकाउंट पे चेक. अब वो देने को मेरे को अकाउंट पे चेक भी दे सकते हैं कि दैट इज खुद उन्होंने एक चेक काट के दे दिया मेरे को, मैं अपनी बैंक में जो है जाके डिपॉजिट करवा दूंगा, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होगी, दैट विल बी अकाउंट पे चेक. लेकिन लेट सपोज वो सिनेरियो भूल जाओ, उन्होंने मेरे को चेक दे दिया अदरवाइज थ्रू अकाउंट पे चेक. अब इसमें क्या होगा? ही विल राइट ऑन द चेक. वो चेक पे क्या लिख देंगे? लेट सपोज दिस इज द चेक. वो लिखेंगे टू पे के नाम पे लिख देंगे करण, और यहां पे साइन हो जाएंगे राहुल सर के. मैं अब इस चेक को कहां लेके जाऊंगा? लेट सपोज कि राहुल सर की बैंक की ब्रांच है HDFC, उनका बैंक का नेम है HDFC. मैं HDFC में गया, वहां पे जाके मैं ये चेक जो है आई विल डिपॉजिट इट. अब वो बैंक वाले क्या करेंगे? उनके अकाउंट में से डेबिट करके मेरे को ये चेक मेरे को हार्ड कैश देते. अकाउंट पे चेक में क्या होता? उनके अकाउंट से मेरे अकाउंट में आ जाता. अदरवाइज थ्रू चेक में क्या है? वन मोड इसकी सेल्फ चेक, और अदरवाइज में क्या आता है? दूसरे किसी पर्सन ने अदरवाइज एन अकाउंट पे चेक किसी और पर्सन के नाम पे दे दिया, दैट इज मेरे नाम पे दे दिया. अब उनके अकाउंट से मनी डेबिट होके मेरे को हार्ड कैश के फॉर्म में मिल जाएगी. ठीक है, तो आई विल गेट द हार्ड कैश. यहां पे डबल लाइन नहीं लगाई जाएगी. डबल लाइन्स विल नॉट बी देयर हियर जब चेक इशू करेंगे. ठीक है, तो दीज आर द 3 ways. One is account pay check. Yes, self check. तो these are the 3 ways. अब थोड़ा सा हम समराइज करता हूं. अगर मैं, जो अकाउंट पे चेक होता है वो जाता है हमेशा पे के बैंक में. इट विल गोज इन द पेज बैंक. जैसे वो ड्रॉअर है राहुल सर, अकाउंट पे चेक है फॉर एग्जांपल, और मैं पे हूं, तो मनी कहां है? वो मेरे पे के बैंक अकाउंट में जाएगी. सेल्फ चेक में क्या होता है? सेल्फ चेक में सबसे पहले जो सेल्फ चेक होता है वो जाता है ड्रॉअर के बैंक में. इट गोज इन द ड्रॉअर्स बैंक, और फिर ड्रॉअर के बैंक में से उसके अकाउंट में से मनी डेबिट करके आपको हार्ड कैश मिल जाता है. तीसरा है अदरवाइज. ये भी अदरवाइज ही है, ये भी अदरवाइज ही है. दिस इज अदरवाइज, यू कैन से नंबर 1. दिस इज अदरवाइज नंबर 2. इसको भी हम अदरवाइज थ्रू अकाउंट पे ही बोलते हैं. इसमें क्या होता है? चेक जो है वो कहां जाएगा? इट विल गो इन द ड्रॉअर्स. ये जो थर्ड केस है, इसमें मैंने आपको ये बताया कि उन्होंने मेरे नाम पे एक चेक काट के दे दिया और साइन कर दिए अपने. दिस इज दिस पर्टिकुलर. तो ड्रॉअर हो गए राहुल सर, ये उन्हीं के बैंक में जाएगा. ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? टिल हियर, डू यू गेट दैट? अभी थोड़ा सा और रहता है, दैट इज
एक्चुअली कोई है नहीं ना आज क्लास में, तो इट बिकम्स वेरी वेरी मोनोटोनस फॉर मी ऑल्सो टू टीच. अब निकालो थोड़ा सा सेक्शन 142. प्लीज टेक आउट सेक्शन 142 विच डिसाइड्स द जुरिसडिक्शन. 142 क्लॉज 2 देखना प्लीज पहले. तो 142 क्लॉज 1 हम बाद में देखेंगे, पहले हम जुरिसडिक्शन कर रहे हैं, तो ये देखना प्लीज. इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. 142 क्लॉज 2 की एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले मेन प्रोविजन हम पढ़ते हैं. The offence under section 138 shall be inquired into and tried only by a court within whose local jurisdiction. If the check is delivered for collection through an account, the branch of the bank where the payee or holder in due course as the case may be maintains the account is situated. अब ये कह रहे हैं if the check is delivered for collection through an account, ये कौन सा चेक होगा? यहां पे लिख लो साइड पे, it will be account pay check, जहां पे मैं अपने अकाउंट में जाके उसको डिपॉजिट कराता हूं कलेक्शन के लिए, डिमांड करता हूं वहां पे मैं जाके, तो इट इज अकाउंट पे चेक. इफ अ चेक इज डिलीवर्ड फॉर कलेक्शन थ्रू एन अकाउंट, मैं अपने अकाउंट में जाके कलेक्शन कर रहा हूं. द ब्रांच ऑफ द बैंक, कौन सी कोर्ट की जुरिसडिक्शन बनेगी? उस कोर्ट की जुरिसडिक्शन में बनेगी जहां पे वो बैंक है, वेयर द पे और द होल्डर इन ड्यू कोर्स मेंटेन्स द अकाउंट इज सिचुएटेड. तो लेट्स सपोज राहुल सर का अकाउंट चंडीगढ़ में है, उन्होंने मेरे को चेक काट के दिया. मेरा अकाउंट जो है बैंक वो लुधियाना में है, तो पे जो है दैट इज मी, यहां की जुरिसडिक्शन बनेगी अगर चेक डिसऑनर हो गया तो. ये पहली बात तो एक ऑर्डिनेंस के द्वारा ये प्रोविजन लाई गई थी, उसी ऑर्डिनेंस को लेजिस्लेचर ने एक्सेप्ट किया एंड इट वाज मेड द लॉ. ठीक है. बी देखो, if the check is presented for payment by the payee or holder in due course otherwise through an account, ये आ गया आपका सेकंड टाइप ऑफ चेक और द सेकंड नेचर ऑफ द चेक. फर्स्ट वन इज अकाउंट पे चेक और दूसरा है अदरवाइज देन थ्रू अकाउंट पे चेक. उसमें भी दो आगे, सेल्फ चेक और अदरवाइज वाला. दैट इज जो ड्रॉअर है वो मेरे नाम पे इशू करता है, और फर्स्ट में क्या होता है, मैं अपने नाम पे इशू करता हूं, सेल्फ चेक. बी देखो, if the check is presented for payment by the payee or holder in the due course otherwise through an account, the branch of the drawee bank where the drawer maintains the account is situated. ठीक है. जहां पे ड्रॉअर जो है वो अपना अकाउंट मेंटेन करता है, दैट इज कि राहुल सर, दैट इज उनका चंडीगढ़ में अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, वहां पे जुरिसडिक्शन बनेगी अगर चेक बाउंस कर जाता है. ठीक है. तो एक्सप्लेनेशन इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए थोड़ा सा मेरे को आपको और इन डेप्थ लेके जाना पड़ेगा. यहां तक आपको समझ आया, फिर हम आगे फिर कंटिन्यू करते हैं. एक्सप्लेनेशन एंड 142 कैपिटल ए, दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्रोविजन फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम. यहां तक बताइएगा प्लीज, समझ आया आपको? फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. प्राची मैम, बलकरण सर, बताइएगा प्लीज. ओके, तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं. कल हम थोड़ा सा, मैं आपको पहले तो क्वेश्चंस दूंगा, या क्वेश्चन आप लिख ही लो. प्लीज टेक डाउन द क्वेश्चन. अभी टाइम है वैसे थोड़ा सा. एक क्वेश्चन लिखिएगा प्लीज. 3 क्वेश्चन लिखो इनफैक्ट. तो समझ रहे हैं. सबसे पहली बात तो 142 क्लॉज 2 जुरिसडिक्शन कहां पे लाई करेगी आज की डेट में? इफ वो अकाउंट पे चेक है, प्लेस वेयर पे हैज अकाउंट, जहां पे पे का अकाउंट है
उस प्लेस में जुरिडिक्शन लाई करेगी। इफ इट इज अदरवाइज देन अकाउंट, देन प्लेस वेयर ड्रॉअर हैज अकाउंट। इतनी बात याद रखना। आप क्वेश्चन लिखो थोड़ा सा। लेट सपोज कि ये अकाउंट पे चेक है, देयर वॉज एन अकाउंट पे चेक, one person who is from Delhi, he gives a check in Chandigarh, he gives check in Chandigarh, चंडीगढ़ में देता है। चंडीगढ़ में इसने दिया, डिपॉजिट कहां हुआ? चेक वॉज डिपॉजिटेड इन शिमला। नोटिस वॉज गिवन फ्रॉम चंडीगढ़। कौन सी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होगी? दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन लिखो प्लीज। अकाउंट पे चेक है ये भी, इट वॉज गिवन टू लेट सपोज करण। करण ने डिपॉजिट कहां करवाया? इन लेट सपोज एसबीआई ब्रांच हैपोवाल। राहुल सर, इनका अकाउंट है, राहुल सर अकाउंट है पीएनबी, कहां पे रखे? डुगरी। इनका अकाउंट है पीएनबी डुगरी में। करण सर नोटिस कहां से देते हैं? फॉर एग्जांपल आपका शेरपुर चौक। कौन से पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन होगी? विच पुलिस स्टेशन विल हैव जुरिस्डिक्शन? अकाउंट पे चेक है कि राहुल सर ने करण सर को काट के दिया, मैंने डिपॉजिट करवा दिया एसबीआई हैपोवाल में। ऑन द अदर हैंड राहुल सर का अकाउंट था पीएनबी डुगरी में। मैं नोटिस कहां से देता हूं? शेरपुर चौक वाले बैंक से, शेरपुर से लेट सपोज देता हूं। पुलिस स्टेशन, कौन से पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन बनेगी? और पुलिस स्टेशन, हर एक पुलिस स्टेशन का एक मैजिस्ट्रेट होता है। चलो ये 2 क्वेश्चन ही लिखो प्लीज अभी। तो इसका आंसर मेरे को आप नेक्स्ट क्लास में दीजिएगा प्लीज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टाइम भी लगभग हो ही गया है। आज आपको थोड़ा सा जल्दी छोड़ देता हूं, बच्चे आते नहीं क्लास में। ठीक है, गुड इवनिंग। ये नोट कर लेना प्लीज। Resilience Law Academy.